Hello everyone, I welcome you to my channel Numeric Marathon. We are currently doing chapter 2 relations and functions. In the previous video of this chapter, we have discussed the Cartesian product. We have discussed exercise 2.1 in detail, and in the second video we have discussed the concept of relations, and also we have done exercise 2.2. So in today's video, we will be moving ahead with the concept of functions. Before starting the concept of functions, let's revise what we did in our video 1 and video 2. Fine. So we started with the concept of Cartesian product. What is Cartesian product? Cartesian product is a set from A to B where A and B are my non-empty sets. Fine. And it is defined as A cross B, which in which we have the ordered pairs of the form x, y. हमारे ordered pairs होते हैं इस set में x, y के form में, in which the first element of the ordered pair, that is x, belongs to A, and the second element of the ordered pair, that is y, it belongs to B. फाइन. जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है टू सेट्स का, सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. फाइन. इफ वी आर गिवन द सेट्स एज A क्रॉस B क्रॉस C, that means we are given three sets and we are supposed to find the Cartesian product of three sets, then our elements will be of the form ordered triplet. हमारे जो elements होंगे वो ordered triplet के form में होंगे. और इन ordered triplets के जो हमारे elements हैं वो है x, y, z. Now x belongs to the first set, that is A, y belongs to the second set, that is B, and z belongs to the second set, that is C. Z जो है वो हमारा थर्ड सेट में बिलोंग करेगा, सॉरी, z belongs to the third set, that is C. We have also studied how to find the cardinality of the Cartesian product. Cardinality of the Cartesian product A cross B is equal to cardinality of A into cardinality of B. Okay, now this is what we studied in Cartesian product. Let's have what is relation now. So now relation is denoted as R, which is defined from A to B, where A and B are again two non-empty sets. ठीक है, रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन एक लिंकेज है हमारी. कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक लिंकेज है, बट रिलेशन भी एक हमारी लिंकेज है. कहाँ से? फ्रॉम सेट A टू फ्रॉम सेट B. नाउ अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. फाइन. कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारा वो एक्चुअली फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है, उनका लिंक बनाता है. अब ये जो हमारा रिलेशन है ये भी क्या होता है, एक तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो गया, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया ये. R is a subset or it may be equal to Cartesian product in which each element of A is related to each element of B under a described relation. Fine. मतलब कि सेट A के एलिमेंट्स के साथ सेट B के एलिमेंट्स को हम रिलेट करते हैं और किसके अंडर करते हैं? एक डिस्क्राइब रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, एक कंडीशन गिवन होती है हमें उसकी. फाइन. And the first elements of this ordered pair are known as pre-image. Second elements of this ordered pair are known as image. अब A cross B का सबसेट है, इसका मतलब एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होंगे. अब उन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे सेट A के हैं, उनको हम प्री इमेज कहते हैं. सेकंड एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं. We have also studied the concept of domain. Domain क्या होता है हमारा? सेट ऑफ प्री इमेज. सेट ऑफ प्री इमेज मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम सेट ऑफ प्री इमेज कहते हैं या फिर सेट ऑफ डोमेन कहते हैं. सिमिलरली रेंज क्या होता है हमारा? रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस, दैट मींस सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, उसको हम बोलते हैं रेंज या फिर सेट ऑफ इमेजेस. अब वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड अ रिलेशन फ्रॉम A to B, दैट मींस द सेकंड सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. सो किसी भी रिलेशन का जो कोडोमेन हमें निकालने को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज दिस सेकंड सेट R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B. ये जो सेकंड सेट होता है हमारा ये हमेशा कोडोमेन होता है. फाइन. अब हमने एक और रिलेशनशिप पढ़ी थी, व्हाट? दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. इट कैन बी अ सबसेट आल्सो, इट कैन बी इक्वल टू कोडोमेन आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. फाइन. नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B क्या होते हैं हमारे? 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B. अब रिलेशन फ्रॉम A to B मतलब रिलेशन क्या है हमारा? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं? जो जिस सेट का सबसेट निकालना होता है उसको हम पावर रखते हैं 2 की. सो यहाँ पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकाला है, दैट मींस 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. फाइन. दिस ऑल वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ फंक्शंस. सो फंक्शंस हमारा क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन. इट इज अ स्पेशल relation.
अभी जो हमने पढ़ा है उसी को अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली डिटेल में अगर हम जाएंगे तो रिलेशन को ही अगर हमारा एक स्पेशल रिलेशन जो होता है वो हमारा फंक्शन कहलाता है। अब हमने ये पढ़ा था कि रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन जो हमारा डिफाइन होता है वो कहाँ डिफाइन होता है? ए टू बी, फ्रॉम फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट। रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। So now what is a function? Function is a special relation from domain to codomain. Domain to codomain. That means function is a mapping. कुछ बुक्स में function को mapping भी कहा जाता है, map भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? We'll discuss that in detail. Fine. So f is a mapping function or a map from domain to codomain. फाइन। डोमेन कहां से आ रहा है, कोडोमेन कहां से आ रहा है? क्योंकि हम ऑलरेडी रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, इसलिए हमें पता है अगर रिलेशन है तो डोमेन भी एग्जिस्ट करेगा, कोडोमेन भी एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। फाइन। एफ जो है हमारा एक मैपिंग है डोमेन टू कोडोमेन। अब प्लीज पे अटेंशन, वी आर यूजिंग स्मॉल लेटर एफ फॉर डिनोटिंग अ फंक्शन। We are using capital letter R for denoting a relation. We are using small letter f for denoting a function. तो अगर मैं एक function define करती हूँ, if I am defining a function, f be a function from a to b. Fine. f be a function from a to b. तो f जो है वो मेरे कैसे एलिमेंट्स बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे x, y, क्योंकि f जो है एक पर्टिकुलर रिलेशन है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं तो फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है। अब रिलेशन में हमें कंडीशन गिवन होती थी, यहां पर भी हमें कंडीशन लेके चल रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी इस चीज को हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट दैट इज a, y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट दैट इज b। फाइन। नाउ कंसिडर दिस, कंसिडर द रिलेशन दैट इज गिवन टू अस। कंडीशन कंसिडर, हमें क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे यही एक रिलेशन दे रखा है। फाइन। इसको ये अब हमें एक फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको ए को मैं मान लेती हूँ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। बी को मैं मान लेती हूँ 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने ए और बी अपने डिफाइन कर लिए हैं। ठीक है। यहां पर अगर बाय चांस मेरे पास कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है। सो अब ये x प्लस वन क्या है? मेरा एक रूल है जिससे y की वैल्यू निकल कर आएगी। x प्लस वन क्या है? एक रूल है जिससे कि y की वैल्यू निकल कर आएगी। कब? जब हम x में सेट a के एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। हमने ये एक रूल डिफाइन करा है। वी हैव डिफाइंड अ रूल इन विच वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x विच इज बिलोंगिंग टू सेट a, और उससे क्या निकल कर आएगा? मेरा y की वैल्यू निकल कर आएगी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है। सो अगर मैं x लेकर चलती हूँ अपना, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 1। ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 1, नाउ दिस 1 इज बिलोंगिंग फ्रॉम सेट a। अब y मेरा क्या बनेगा? x प्लस वन विच इज इक्वल टू 2। नाउ 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट b, तो ये तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ही नहीं होगा, तो फंक्शन में तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। अगर मैं लेके चलती हूँ 5, इफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो y क्या निकल कर आएगा मेरा? 5 प्लस वन। नाउ दिस x इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू a। अब ये जो मेरा y निकल कर आया है, ये भी क्या निकल कर आया है? 6। ये भी मेरा b में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बना? x, y, विच इज x कितना लिया था? 5, निकल के कितना आया मेरा? 6। तो ये जो मैंने कंडीशन यहाँ डिफाइन करी है, ये जो मैंने रूल यहाँ डिफाइन करा है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? f ऑफ x। दैट मीन्स वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन x प्लस वन, जिसमें कि x की वैल्यूज जो है वो a से आएंगी, y की वैल्यूज जो है वो b से आएंगी। मतलब x प्लस वन में x की वैल्यूज डालते जाएंगे तो हमारे पास y की जो वैल्यूज है वो आती जाएंगी।
नाउ फंक्शन की एक मेजर और बेसिक प्रॉपर्टी है कि every element of domain every element of domain has a unique image has a unique image. इसको हम पहले एक एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस सेट ए एंड आई एम हैविंग दिस सेट बी. सेट ए में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4. यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 4 9 एंड 16. यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 4 9 एंड 16. सो यहाँ पर मेरा एक कंडीशन मैं यहाँ से क्या डिफाइन कर सकती हूँ? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, वेयर एफ एक्स को मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ? y से. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. दैट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9 एंड 4 इज रिलेटेड टू 16. ठीक है. अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो डोमेन है हमारा, मतलब जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट है, जो डोमेन है, उनकी जो हमारे पास ये इमेजेस निकल कर आई हैं. इमेजेस क्या निकल कर आई हैं? 1 4 9 और 16. ये जो इमेजेस निकल कर आई हैं ये यूनिक निकल कर आई हैं. राइट. 1 हमारा किसी और नंबर से रिलेट नहीं हो रहा है 1 को छोड़ के, 2 हमारा किसी और नंबर से रिलेट नहीं हो रहा है 4 को छोड़ के, 3 हमारा किसी और नंबर से रिलेट नहीं हो रहा है 9 को छोड़ के, एंड 4 भी किसी और नंबर से रिलेट नहीं हो रहा है 16 को छोड़कर. तो जब हमारा सेटअप ऐसा बनता है तभी फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है. अगर मेरा सेटअप कुछ इस फॉर्म का है, इफ माई सेटअप इज इफ दिस फॉर्म, मेरा सेट P एंड ये है सेट Q. ठीक है. इसमें मेरे कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4. यहाँ पर भी आई एम टेकिंग रैंडम एलिमेंट्स 7 8 9 10. सो अगर मैं एक यहाँ पर ये रिलेशन सेटअप कर रही हूँ दैट 1 इज रिलेटेड टू 7 एंड 1 इज रिलेटेड टू 8, 3 is related to 8, 4 is also related to 8. अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बन रहे हैं? 1,7, 1,8, 3,8 एंड 4,8. अब आप ये देखिए कि जो मेरा एलिमेंट है 1, ये मेरे डोमेन के एलिमेंट्स हैं. 1 is belonging to the set of domain that is P. 1 जो है मेरा P से बिलोंग कर रहा है. अब इसकी मेरे पास दो इमेजेस निकल कर आ रही हैं. इसकी दो इमेजेस कौन सी हैं? डिफरेंट इमेजेस कौन कौन सी है इसकी? एक निकल कर आई है 7, दूसरी निकल कर आई है 8. सो सेटअप ऑफ दिस फॉर्म इज नॉट अ फंक्शन. नॉट अ फंक्शन. ऐसा सेटअप कभी भी फंक्शन नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेज निकल कर आ रही है वो यूनिक नहीं है. द इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन इज नॉट यूनिक. दैट इज व्हाई this setup cannot be called as a function. This relation cannot be called as a function. So हमारा डिस्कशन अब इन तीन डेफिनेशंस को समराइज करता है. Fine. Now these are the definitions from exactly from the NCERT. NCERT has written each and every word very कैलकुलेटिवली. बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव डेफिनेशंस होती है एनसीईआरटी में एंड बहुत ही क्लियरली समझ आता है एनसीईआरटी के डेफिनेशन से. फाइन. सो एनसीईआरटी क्या कहती है कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी. अ रिलेशन जो है एक एफ जो है एक रिलेशन है हमारे पास फ्रॉम सेट ए टू बी, और ये फंक्शन तब बनता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट की देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज फ्रॉम सेट बी. मतलब जो सेट ए है हमारा फर्स्ट सेट जो है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहे हैं तो हर एक एलिमेंट की हमारी एक यूनिक इमेज बनेगी. ठीक है. हर एक एलिमेंट की हमारी यूनिक इमेज बनेगी. दैट मीन्स F is a relation from A to B. Obviously A and B are non-empty sets such that domain of F is A. That means जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा सेट A होगा. इसको अलग तरह से हम कैसे बोल सकते हैं कि A के हर एक एलिमेंट के लिए हमारी एक यूनिक इमेज निकल कर आएगी. A के हर एक एलिमेंट के लिए हमारी एक यूनिक इमेज निकल कर आएगी, और कोई भी दो एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर के कैन नॉट बी सेम. एंड एनी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ के कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम उठाते हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया दैट मीन्स
यूनिक इमेज नहीं निकल कर आ रही है हमारी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है 2,3, 2,4, 3,7, 3,8, 7,9। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक रिलेशन दे रखा है मुझे और मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या ये मेरा फंक्शन बन सकता है, नहीं। अब आप ये देखिए, मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 2, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसकी इमेज है 8, इसकी इमेज है 8, इसकी इमेज क्या है 4। सिमिलरली मेरे पास एक एलिमेंट है 3, दूसरा भी 3 है फर्स्ट एलिमेंट, एक की इमेज है 7, एक की इमेज है 8। सो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में मेरे फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट्स की जो मेरी इमेज निकल कर आ रही है, ये जो मेरी इमेज निकल रही है 8 4, ये यूनिक नहीं है। फाइन। अगर मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल, में एक दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक रैंडम ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट लिखते हैं अगर हम, मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 1,2, 3,4, 7,9, 11,12, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडमली 20,25। ठीक है, ये मैंने एक अपना सेट बना लिया जिसमें मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब आप ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, 3, 7, 11, 20, इनकी जो इमेज निकल कर आ रही है, 1 की इमेज 2 आ रही है, 3 की इमेज 4 आ रही है, 7 की इमेज 9 आ रही है, 11 की इमेज 12 आ रही है, 20 की इमेज 25 आ रही है। सारी की सारी यूनिक इमेजेस हैं, राइट। हमारी इमेजेस सारी यूनिक हैं। दैट मीन्स किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की हमारे पास, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा है तो मेरे पास 1 की कोई और इमेज यहाँ निकल कर नहीं आ रही है। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ अ रिलेशन जो है ये मेरा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन में वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो एफ में मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे एक्स वाई के फॉर्म में, और हम वाई कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स करके। जो हमें रिलेशन दे रखा है, जो हमें कंडीशन दे रखी है, उसमें हम एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ए क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा डोमेन सेट। वाई, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, नाउ डोमेन ऑफ एफ इज एंटायर ए, राइट। तो मेरा एक्स जो होगा वो पूरा का पूरा डोमेन में बिलोंग करेगा, वाई जो होगा सेट बी में बिलोंग करेंगे, वाई के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेट बी से बिलोंग करेंगे। ठीक है। सो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकती हूँ, दैट एफ इज इक्वल टू एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। वाई की जगह मैं यहाँ पे क्या वैल्यूज डालूंगी, एफ ऑफ एक्स। जो भी मेरा वाई निकल कर आएगा वो बनेगा तो मेरा सेकंड एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर का। तो कुछ बुक्स में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है। So now we are going to start with some functions and their graphs. We are going to study some particular functions and their graphs. So graphs are basically used to depict functions. Like हम arrow diagram से relation को depict करते थे, और graphs functions को हम graph से depict करते हैं. Fine? Okay. Now the first function that we have is identity function. Identity function. So identity function is basically the one that associates each real number to itself. It associates each real number to itself. So यहाँ से हमें क्या एक resemblance मिलता है कि हमारा कोई function है f and it is from R to R, set of real numbers to set of real numbers. Fine. And it says it associates each real number to itself. So इसका हमारा general rule क्या बन जाएगा, f of x is equal to x. f of x is equal to x. Why? क्योंकि अगर हम x यहाँ पर डाल रहे हैं, हमें वही सेम वैल्यू यहाँ निकल कर आ रही है, राइट। जो भी हम x यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वही सेम वैल्यू हमारी यहाँ निकल कर आएगी। ठीक है। सो इनके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, इसमें हमारे वैल्यूज कैसे आएंगी इस फंक्शन में। सो इट विल बी ऑफ द फॉर्म x कॉमा x, इट विल बी ऑफ द फॉर्म x कॉमा x, वेयर f of x इज इक्वल टू x। मतलब जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो भी हमारा x ही निकल कर आएगा, प्री इमेज एंड इमेज विल बी सेम। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा निकल कर आएगा हमारे पास। सो ग्राफ से पहले हम इसका टैबुलर फॉर्म में अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हमारे। सो वी हैव x एंड y,
y किसके इक्वल है हमारा, fx के इक्वल, ठीक है, और fx यहाँ किसके इक्वल है, x के इक्वल. So if I'm substituting x as 0, I will get fx as 0. If I'm substituting x as 1, I'll get fx as 1. If I'm substituting x as 2, my fx will also be 2. Similarly, if I'm substituting x is equal to minus 1, my f of x will also be minus 1. If I'm substituting x is equal to minus 2, my f of x will be minus 2. So this way we can keep going on because x belongs to the set of real numbers. So -1 और -2 के बीच में जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे उनकी भी यही प्रॉपर्टी निकल कर आएगी. हम यहाँ पर अगर हम -1.1 लेंगे तो f of x भी क्या निकल कर आएगा, -1.1. So now we'll look at the graph of this function. So now this is my y-axis and this is my negative y-axis. This is my positive x-axis and this is my negative x-axis. ठीक है, so पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या निकल कर आया यहाँ से 0,0. So this is my 0,0. Similarly, I will have 2,2. If I am substituting here as x is equal to 4, then my f of x will also be 4. That means another हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 4,4. So here is my 4,4. Similarly, we can have 2,2. We can have -4, -4. We can have -6, -6. So similarly, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं. एक बार मैं फिर बता देती हूँ, y is equal to fx. तो y कोऑर्डिनेट पे जो हमारे मार्क होगा वो हमारा फंक्शन मार्क होगा. ठीक है, x कोऑर्डिनेट पे क्या मार्क होगा, x एक्सिस पे क्या मार्क होगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट. y एक्सिस पे मार्क होगा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट. why? Because ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इज y is equal to fx. ठीक है, सो ये हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ. सो नेक्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कांस्टेंट फंक्शन. इट इज कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन. सो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारा, सो इफ वी हैव अ फंक्शन f from r to r, again it is the set of real numbers to set of real numbers. So basically constant function, identity functions, they are all real valued functions. So we can say that they are real valued functions. Real valued functions because इनकी डोमेन भी रियल नंबर्स होते हैं, इनका रेंज भी रियल नंबर निकल कर आता है, कोडोमेन भी रियल नंबर्स होते हैं. सो दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द रियल नंबर्स. फाइन. सो कांस्टेंट फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है, इट इज फ्रॉम r to r. सो ये कैसे डिफाइन करता है अपनी इमेज को, f of x is equal to k, where k is some real number and it is always constant. K is some real number and k is always constant. That means if I am substituting my x as, if x is equal to 0, then okay, obviously this is y is equal to fx. हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा फंक्शन होता है. ठीक है, सो मेरा y क्या निकल कर आएगा यहाँ से, k. If I am substituting x is equal to 1, then also y is equal to k. हम x में यहाँ कोई भी वैल्यू डाल लें, हमारी इमेज फिक्स्ड ही रहेगी, वो है k. हमारी इमेज फिक्स्ड रहेगी, वो है k. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 1, ये भी k निकल कर आया मेरा. आई एम हैविंग 0, ये भी मेरा k निकल कर आया. आई एम हैविंग 3, दिस इज ऑल्सो k. आई एम हैविंग -1, दिस इज ऑल्सो k. सो 1 की इमेज भी k है, राइट. 0 की इमेज भी k है, 3 की इमेज भी k है एंड -1 की इमेज भी k है. दैट मीन्स हमारी इमेज जो है वो फिक्स्ड है. हम डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लें, उसके लिए हमारी इमेज जो निकल कर आएगी वो फिक्स निकल कर आएगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. फाइन, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन. ओके, नाउ विल लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन. सो दिस इज माय कोऑर्डिनेट प्लेन. अगेन दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस. अब ये मेरा डिस्टेंस है k. अब आप ये देखिए, इफ x is equal to 2, y is k. If x is equal to 4, y is k. If x is equal to 6, y is again k. तो हम कोई भी वैल्यू डालें x का, हमारा y क्या निकल कर आ रहा है, कांस्टेंट निकल कर आ रहा है, k ही निकल कर आ रहा है, राइट. सो हम क्या कह सकते हैं, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज अ लाइन parallel to x axis.
यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बना है कांस्टेंट फंक्शन का वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, हमेशा पैरेलल ही आएगा एक्स एक्सिस के। आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। अब बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन की। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये सारे फंक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन रियल फंक्शंस, रियल नंबर्स। सो इसकी रेंज क्या, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर एक्स की जगह। ठीक है, रेंज क्या निकल कर आ रही है मेरी, हम कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं एक्स की, मेरा वाई क्या निकल कर आ रहा है, के निकल कर आ रहा है, हमेशा के ही निकल कर आ रही है इमेज। सो सेट ऑफ इमेज में मेरा क्या एलिमेंट आ जाएगा, सिंगलटन के। ये मेरा बन गया है रेंज। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन अगेन विल बी आर, क्योंकि कोडोमेन हमारा क्या होता है, रेंज से कोई सा भी बड़ा सेट अगर हम लेते हैं तो वो कोडोमेन होता है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट और इट में बी इक्वल टू कोडोमेन। सो के हमारा जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। सो वी कैन से दैट दिस आर इज अ कोडोमेन सेट फॉर दिस कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन दैट वी हैव इज पॉलिनोमियल फंक्शन। polynomial function. So again polynomial function is a real valued function. So this will be from f is a function from r to r. ठीक है, so इसका हमारे पास जनरल रूल क्या निकल कर आता है, for each x belong to r, for each x belong to r, y is equal to fx, और fx किस फॉर्म का है हमारा, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन anxn। अब इसको देखकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल पॉलिनोमियल जो हम लिखते हैं। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, इफ माई fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ये हमें बहुत ज्यादा हमारा देखा हुआ पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मली पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, वी स्टार्ट विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड देन वी रीच द कांस्टेंट। यहाँ हमने उस चीज को थोड़ा सा ऑपोजिट लिख दिया है, वी हैव स्टार्टेड विद द कांस्टेंट एंड वी आर राइटिंग द इंक्रीजिंग एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब। ठीक है, और ये a1 a2 a0 ये क्या है हमारे, ये है हमारे कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रियल नंबर्स। ये क्या है हमारे, ये भी रियल नंबर्स ही हैं। सो ए नॉट a1 a2 एंड सो ऑन an, ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। कोफिशिएंट्स जो हैं इन वेरिएबल्स के, ये भी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, अब देखते हैं जरा, पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पॉलिनोमियल होता कैसा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एंड आई एम कंसिडरिंग अनदर पॉलिनोमियल g of x which is equal to रूट टू एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3। सो मेरे दोनों ही f of x एंड g of x जो होंगे दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। Why? Because the power of x जो है वो हमारा होल नंबर है, पावर ऑफ x क्या है, हमारा होल नंबर है। ठीक है, बट इफ आई हैव अ पॉलिनोमियल h ऑफ x मेरा किस हिसाब से है, x टू द पावर 2/3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जो है पावर जो है x की, दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। फाइन, पॉलिनोमियल होने के लिए पावर ऑफ x हैज टू बी अ होल नंबर। ओके, ये जो n है हमारा यहाँ पर, दिस इज नॉन नेगेटिव। n मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, n इज द पावर, हमारा n 0 है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर ये जाते जाते n हो गया। तो ये जो पावर्स है हमारी, ये नॉन नेगेटिव है एंड दे आर होल नंबर्स। ठीक है, तब एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जब ये जो पावर्स है हमारी नॉन नेगेटिव हो और होल नंबर्स हो। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पॉलिनोमियल व्हिच इज गिवन टू अस। वी कैन नॉट जनरलाइज एनी ग्राफ, हम कोई एक ग्राफ जनरलाइज नहीं कर सकते हर एक पॉलिनोमियल के लिए।
It depends. Like for example, if you're having a graph for x square, a square function, okay, so this will be a parabola. We'll discuss this in detail in the next example. Fine. If I'm having an example like fx is equal to x cube, so the graph of parabola and graph of x cube are going to be entirely different. So यहाँ पर हम ना तो ग्राफ एक पर्टिकुलरली डिपिक्ट कर सकते हैं हर एक पोलिनोमियल के लिए कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल विच इज गिवन टू अस. एंड सिमिलरली range of this polynomial function changes as the polynomial change. So range भी हम क्या होता है, हम हर एक polynomial के लिए एक generalized range नहीं define कर सकते. Range हमारी change होती रहती है as we change the function. Fine. So now let f be a function from R to R, real valued function, such that fx is equal to x square. Fx means y is equal to fx which is equal to x square. ठीक है. So अब हमें इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है, so basically first we need to find out the coordinates. अपने ग्राफ के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे हमें. कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें जैसे क्लास 10 में हम लोग इक्वेशन की ग्राफ बनाने के लिए टेबल ड्रॉ करते थे, सिमिलर टेबल हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे. फाइन. सो इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -4, तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ -4 which is 16. Similarly square of -3, if I am putting x is equal to -3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9. अगर हम -2 डालते हैं तो x की जगह -2 अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा +4. Similarly 1 का स्क्वायर 1, square of 0 is 0, square of 1 is again 1. So if I am putting x is equal to 2, my y will become 4. If I am putting x is equal to 3, my y will become 3 square, that is 9. Similarly, if x is equal to 4, y will be x square, that is 16. So ये हमने अपने x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं. ऊपर वाला है x कोऑर्डिनेट, नीचे वाला है y कोऑर्डिनेट. Now let's look at the graph of this function. Okay. So now this is my positive y axis, negative y axis, positive x axis and negative x axis. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, अब वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट आवर वैल्यूज. दिस इज माय x, दिस इज माय y. फाइन. वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स इन दिस ग्राफ. ठीक है. अब अगर मेरा x मेरा -4 है तो y है 16. ठीक है. इफ माय x इज -3, माय y इज 9. So if my x is -2, my y is 4. So -2 and 4. For +2 also it is 4. 9 मेरा कहीं इस तरफ आएगा, somewhere here. So if it is, and 3 will be somewhere here. So if it is for -3, then we have -9. Sorry, +9. For +3 also we have +9. So when we are going to join these points, when we are going to join all these points, we get a parabola this, like this, U-shaped graph. U-shaped graph. ठीक है. सो ये बन गया है हमारा ग्राफ एक्स स्क्वायर का. अब डिस्कस करते हैं इसकी डोमेन. डोमेन क्या हो जाएगी, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं. यहां पर भी हमें दिया है दैट डोमेन इज एंटायर आर, राइट. इसकी रेंज क्या निकल कर आ रही है हमारे पास. सो व्हेन वी स्क्वायर अ नंबर, हमारे पास हमेशा आंसर क्या निकल कर आता है, पॉजिटिव निकल कर आता है. नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो होता ही पॉजिटिव है. सो रेंज कैन बी पॉजिटिव रियल नंबर्स. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्म में, 0 to infinity. ओके, दिस इज द रेंज. कोडोमेन क्या बन जाएगा मेरा, कोडोमेन विल बी अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स. व्हाई, बिकॉज दिस r प्लस इज अ सबसेट ऑफ r. तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कोडोमेन. ठीक है. सो ये हमने एक पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करा है जिसकी रेंज r है, सॉरी जिसकी डोमेन r है, रेंज है 0 to infinity, कोडोमेन है r, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर. फाइन. नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ fx is equal to x cube. ठीक है. fx is equal to x cube. Again f is a function from r to r. y is equal to fx is equal to x cube. इसका मतलब क्या हुआ, if I am going to substitute x is equal to 0, fx will be 0. If I have
x is equal to -1, fx will be again -1. So in this way we are again going to construct a table like this and we are going to plot the graph. So the graph of fx is equal to x cube मेरा कुछ इस तरह से आएगा. This is my y axis and this is my x axis. So when I am going to plot the graph, मेरा ग्राफ आएगा वो इस हिसाब से आएगा. और ये कैसे आ रहा है? When we are going to plot the coordinates x, y coordinates. Fine. For example, if I have x is equal to 3, then f of x will be 27. Similarly, if I am having x is equal to -3, x is equal to -3, so f of x will be -27. So when we are going to plot them on the plane, हमारा जो ग्राफ निकल कर आएगा will be of this form. Okay. Now if we discuss the domain of fx is equal to x cube, domain क्या बनेगा हमारा? Again this is from set of real numbers. Again it is a real valued function, तो domain हमारा real numbers ही निकल कर आएंगे. ठीक है. Then if I say range will be, it can be negative also. If I am substituting 0, I'll get 0. If I'm putting positive values, I'll get positive numbers. So range क्या निकल कर आएगी मेरी? Set of real numbers. So codomain क्या बन जाएगा? Again codomain will be set of real numbers. ठीक है. हमने अभी यहाँ पर x square की रेंज निकाली थी. So x square की रेंज में हमने 0 को इंक्लूड क्यों करा है? Because when we are substituting 0, we are getting a 0. That is why in this interval we have included 0 as the element of range. ठीक है. Don't get confused with this. हमने 0 इंक्लूड इसलिए करा है क्योंकि 0 हमारा निकल कर आ रहा है. 0 डालेंगे तो x स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स भी हमारे आ रहे हैं. रेंज में नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं. दैट मीन्स the entire set of real numbers can be the set of range. Okay. So after polynomial function we have rational function. So अगर हमारा fx कोई rational function है, so fx will be of the form gx upon hx. gx upon hx. अच्छा, rational number की definition we have studied that rational number is of the form p upon q, where q is not equal to 0, right? Q is not equal to 0 because if this becomes 0, then p upon 0 goes undefined, right? This we have already studied in our previous classes. So now if I consider, so similarly here the polynomial hx should not be equal to 0, or it should not go undefined, we should say should not go undefined. और ऐसा कब हो सकता है? जब हमारा x not equal to 0, right? तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म gx upon hx where x not equal to 0, y not equal to 0, so that this hx does not go undefined, right? ऐसे हमारे एक सेटअप को, फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं. फाइन. सो अब इसके डोमेन, रेंज और को डोमेन जो होता है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन और द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस एंड वी इवैल्यूएट द डोमेन एंड रेंज अकॉर्डिंगली. इसका कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा, हमेशा हमेशा रियल नंबर्स रहेंगे या हमेशा रियल नंबर्स नहीं रहेंगे. इट डिपेंड्स ऑन दिस h of x, इट डिपेंड्स ऑन दिस g of x, ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप जो हमें गिवन है. ठीक है. कभी कभी डोमेन हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, समटाइम्स वी आर सपोज टू इवैल्यूएट दिस. ठीक है. सो नाउ इफ आई हैव अ फंक्शन लाइक 1 upon x, दिस इज अ रैशनल फंक्शन. फाइन. इसका पहले तो हमें ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे आता है. सो 1 upon x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है. दिस इज अ हाइपरबोला. हाइपरबोला के बारे में हम लोग डिटेल में विल स्टडी इन द कॉनिक सेक्शन, बट अभी के लिए यू कैन कंसिडर दैट द ग्राफ ऑफ 1 upon x इज अ हाइपरबोला. ठीक है. अब ये हमारा हाइपरबोला निकल के कैसे आया? वी हैव इवैल्यूएटेड द वैल्यूज, हमने x डाला और y हमारा निकल कर आया. लाइक if I substitute x is equal to 1, then I'll get y upon 1 upon 1. y is equal to 1 upon 1. If I get x is equal to 2, then y will be 1 upon 2. Similarly, if x is equal to 0, y will be 1 upon 0. Now this 1 upon 0 is not defined. Not defined. इसीलिए ये जो ग्राफ है is not touching 0, is not touching our origin. ठीक है. This is why the graph is not touching origin. So यहाँ से अब हम इसका डोमेन क्या निकाल सकते हैं? डोमेन ऑफ 1 upon x.
सो डोमेन क्या होगा हमारा, वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइंड है. सो फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. रेंज क्या निकल कर आएगी इसकी, रेंज क्या निकल कर आ सकती है इसकी, आप ये देखिए अब. Now, if you look at the graph carefully, this graph is not touching the axis. ये जो हमारी ग्राफ निकल कर आ रहा है दोनों ही साइड पर, ये एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को. दैट मीन्स जो हमारा इमेज निकल कर आएगी वो कभी भी जीरो नहीं निकल कर आएगी. सो रेंज कितना हो जाएगा, अगेन आर माइनस जीरो. ठीक है, डोमेन हो गया द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. रेंज में कितना हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. एंड प्लीज पे अटेंशन, ये जो सेट चल रहा है हमारा, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो जीरो से वन के बीच में आई विल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स. सो आई कैन पुट एनी नंबर हियर और ग्राफ मेरा कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा. आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ग्राफ में, इक्वेशन में, फंक्शन में, so when you will plot the graph you will get a graph like this way, and this graph will not be touching the axis on both the sides, neither it will touch the origin. So we can say that the range of this function will be r minus 0. Now next function that we are going to study is modulus function. Modulus function is a function again from r to r, set of real numbers to set of real numbers. Fine. And it is defined as y is equal to fx is equal to mod of x. अब हमने ये पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में दैट दिस मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू. फाइन. सो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है, आंसर हमेशा क्या निकल कर आता है, पॉजिटिव निकल कर आता है. राइट, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. सो अगर हम इसको फंक्शन को थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है. सो इफ आई हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर x जो है मेरा वो जीरो से या जीरो से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो माय वैल्यू विल बी x. राइट, इफ माय x इज लेस देन जीरो तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस x. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. इफ x इज इक्वल टू 4, तो इफ वी हैव x इज इक्वल टू 4, फाइन. सो अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से अपना फंक्शन बनाते हैं, सो x इज इक्वल टू 4, नाउ दिस इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. सो f ऑफ 4 क्या बन जाएगा हमारा, 4. Why? Because if x is greater than 0, तो जो x हम लेके चलते हैं fx is equal to वही आ जाता है. Right? So now if x is equal to minus 4, now this is less than 0. Fine. So f of minus 4 कितना हो जाएगा, minus of minus 4. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने if x is less than 0 तो f of x डाला तो आंसर क्या है, माइनस x. सो हमने डाला f of minus 4, तो यहाँ पर x क्या है, माइनस 4. सो माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर एक माइनस जो कि हमारा यहाँ पर भी लगा हुआ है. फाइन. सो ये क्या निकल कर आया हमारा, प्लस 4. हमारे पास निकल कर आया प्लस 4. सो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन. ओके. सो नाउ लेट्स कंसिडर द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. दिस इज माय पॉजिटिव y एक्सिस, this is my positive x axis, negative x axis and negative y axis. Fine. So अगर मैं यहाँ पर f of 2 निकालती हूँ, if x is equal to 2, then f of 2 will be is equal to 2. If x is equal to minus 2, f of minus 2 will be minus of minus 2 which is positive 2. So यहाँ पर अगर मेरा x is minus 2 and x is plus 2, मेरी वैल्यूज क्या निकल कर आ रही है यहाँ से, positive 2. Fine. So y will be positive 2. Similarly, if we say x is equal to some other value, like for example, similarly if I take x is equal to 4, as I've taken in this example, x is equal to 4, then my f of 4 will be positive 4. If x is equal to minus 4, now this is less than 0. So f of x will become, sorry, we can write f of 4, that is also minus 4. So f of minus 4 will become minus of minus 4. This becomes positive. So if x is equal to 4 and x is equal to minus 4, मेरी वैल्यूज क्या निकल कर आ रही है, y की पॉजिटिव ही निकल कर आ रही है. राइट. सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग x एज 6 एंड माइनस 6, सो fx क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव 6. So when I am going to join these points, I will get a graph like this, and notch of the graph will be touching 0. Notch is this joint. If this is a graph, then this is called notch of the graph. Fine.
तो नॉच ऑफ द ग्राफ कहां पर है हमारा 0 पर. वाई? बिकॉज व्हेन x इज इक्वल टू 0 f of x is also 0. That is why this is the graph of modulus function. Now if we talk about the domain of modulus function, अब हम x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, हमें हर किसी वैल्यू के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, राइट? सो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स. रेंज क्या बन जाएगा? नाउ विच एवर वैल्यू वी सब्स्टिट्यूट इन x, हमारा fx हमेशा क्या निकल कर आ रहा है? पॉजिटिव निकल कर आ रहा है हमेशा fx. इसका मतलब क्या हुआ? इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज कभी नेगेटिव नहीं आ रही है मॉडुलस फंक्शन में. सो रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? r प्लस, राइट, सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर पॉजिटिव. और हम यहाँ पर 0 भी इंक्लूड करेंगे. वाई? बिकॉज व्हेन वी आर पुटिंग 0 x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x क्या निकल कर आ रहा है? 0 ही निकल कर आ रहा है. दैट मीन्स दिस विल बिकम आर रेंज सेट. ओके, इफ आई टॉक अबाउट कोडोमेन, codomain can again be R, which is very clear from here. Codomain will again become R also. This R plus is a subset of R. तो अगर हम कोडोमेन अपना R रखते हैं set of real numbers, then it is completely justified. Fine. So this is our modulus function. Next function that we are going to study is signum function. Okay, signum function. So signum function is again a function from R to R. It is a real valued function. और ये function कैसे define होता है? It is mod of x upon x when x is not equal to 0, and it is equal to 0 when x is equal to 0. So अगर हम इसको थोड़ा सा और modify करके लिखते हैं, थोड़ा सा और distribute करके लिखते हैं अगर हम इस fx को, so ये मेरा क्या बन जाएगा? Now please pay attention. If x is greater than 0, अगर मैं x को greater than 0 लेती हूँ, so mod x मेरा क्या निकल कर आएगा? If x is greater than 0, mod x will be equal to x. When x greater than 0, mod x will also be greater than 0. So अगर मेरा mod x greater than 0 होगा, then mod x will be equal to x, right? So ये क्या निकल कर आ गया यहाँ से? हम क्या लिख सकते हैं? It will become x upon x, which is equal to 1 when I cancel it. So fx is equal to 1 if x is greater than 0. Fine. And यहाँ से हमें बहुत clear definition है that it is equal to 0 when x is equal to 0. fx is equal to 0 when x is equal to 0. Now if I am saying if x is negative, if x is less than 0, तो अगर x less than 0 है, if x is less than 0, तो mod x कैसे define होता है? Mod x is equal to minus of minus x, right? So मैं mod x की जगह क्या डाल सकती हूँ यहाँ पर? Minus of x, right? x मेरा कुछ भी है लेकिन negative है, right? Upon x. So when I cancel it, I will get minus 1. So the modified value of this function, this becomes as fx is equal to 1 if x is greater than 0. It is equal to 0 if x is equal to 0. It is minus 1 if x is less than 0. Fine. ये हमारा होता है signum function. This is called signum function. Now we'll study the graph of signum function. Okay. So this is the graph of signum function. ये graph आता कैसे? Let's study that. So this is positive y axis. पॉजिटिव y एक्सिस पे हम क्या मार्क करते हैं? y कोऑर्डिनेट, जो कि होता है हमारा fx. ये हो गया हमारा x एक्सिस, अगेन माइनस y एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस. फाइन. नाउ लुक एट दिस. इट सेज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, fx इज इक्वल टू 1. इसका मतलब हम x में कुछ भी वैल्यू डालें ग्रेटर देन 0, आवर वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1. इफ x इज गोइंग टू बी 1, y is going to be 1. If x is going to be 2, y is going to be 2, and similarly for all the points lying between these particular two real numbers. ठीक है? So this is the graph we are getting for x is greater than 0. Obviously when it says x is equal to 0, that means we'll have this 0. एक ये point आएगा हमारा. उसके बाद वो क्या कर रहा है? If x is less than 0, fx is equal to minus 1. That means हम x में जो भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, हमारी वैल्यू हमेशा कहाँ फिक्स जाएगी? -1 पर. अगर हम x माइनस 1 डालते हैं तो y भी -1 है, x माइनस 2 डालते हैं तब भी y -1 है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू डालते हैं तब भी y क्या निकल कर आएगा? -1 ही निकल कर आएगा. सो दिस इज द फंक्शन फॉर, दिस इज द ग्राफ फॉर सिग्नम फंक्शन.
अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, हम कोई भी रियल नंबर पर सिग्नम फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे मॉडुलस का हमारे पास डोमेन क्या था, रियल नंबर्स था, यहाँ पर भी मॉडुलस यूज हो रहा है। सो इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज क्या निकल कर आ रही है इसकी, रेंज में हमारे पास सिर्फ 3 नंबर्स निकल कर आने हैं, ओनली सेट ऑफ 3 रियल नंबर्स, राइट। ये बन गया 1, 0, -1। सो दिस बिकम्स द रेंज सेट। व्हाई? बिकॉज द इमेज ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, हर नंबर की इमेज क्या निकल कर आ रही है हमारे पास, 1, 0, -1, इन्हीं में से कोई इमेज निकल कर आएगी। सो दिस बिकम्स द रेंज सेट। अगेन कोडोमेन विल बी इक्वल टू, codomain will be equal to set of real numbers. Why? Because this range 1, 0, -1 will be a subset of R. So it is very much justified if we say that codomain will become the set of real numbers. Fine, this is our signum function. So next function that we are going to study is greatest integer function. Again, greatest integer function is a function from R to R. Fine, and it is defined as f of x is equal to bracket, this kind of a bracket, square bracket x. अब इसका मतलब क्या होता है, it means, so हमारा f of x is equal to this square bracket x कैसी वैल्यूज लेगा, it will assume the values of the greatest integer less than or equal to x. ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। if f of 2.3 हमें निकालना है, so f of 2.3 will be bracket square bracket 2.3। अब धीरे धीरे करके हम इस डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं इंटीजर्स, पहले हम निकालते हैं इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। फाइन, पहले हम निकालते हैं इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। सो इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीजर less than or equal to, I can write like this, to 2.3. Now what are the integers which are less than or equal to 2.3? ठीक है, it will be 2, क्योंकि 2.3 तो इंटीजर नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर मैं 2.3 का इंटीजर ढूंढना है, 2.3 से छोटा इंटीजर ढूंढना है, ऑब्वियसली इट विल बी 2, 1, 0 and now it will take negative integers. So now it says greatest value of these integers. So इसमें greatest value क्या है, 2. So f of 2.3 which is equal to bracket 2.3, it will be equal to 2. Similarly, if I am taking f of 1.9, 1.9 में क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट 1.9, मतलब 1.9 से छोटे इंटीजर बट उनमें से सबसे बड़ा। सो 1.9 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे हमारे, 1, 0, -1 एंड इट विल गो ऑन लाइक दैट। सो इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1। Similarly, if I have a negative x, f of -2.3, f of -2.3 मतलब -2.3 in the bigger bracket. So what are the integers lesser than or equal to -2.3? So -2.3 is lying between -3 and -2, right? So अगर मुझे ये देखना है कि -2.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है, so obviously -2.3 से छोटा इंटीजर मुझे क्या मिलेगा, -3, -4, -5 and so on, it will go on in the negative direction, right? हम -2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि obviously -2.3 और -2 में कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, बट हमें कौन सा इंटीजर चाहिए which is lesser than -2.3, so that is why we'll take -3। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, -3। So f of -2.3 will become -3. So now if we observe the graph of the signum, this sorry greatest integer function, ये मेरा y axis, this is my x axis, fine। अब अगर मुझे यहाँ 0 से 1 के बीच में वैल्यूज डालनी है, so obviously 0 पे मेरी वैल्यू 0 आएगी, फाइन, 0 पे मेरी वैल्यू 0 ही आएगी, बट 0 से अगर मैं 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालती हूँ तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, राइट। 1 पे, 1 पे क्या आएगी, 1 पे क्या आएगी, 1 आएगी। सो दैट इज व्हाई आई पुट अ बिगर सर्कल हियर, डार्कर सर्कल। 1 से लेकर 2 तक अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगी तो भी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। 1.9999 तक 1 रहेगी, ठीक है। 2 पर जब हम आ जाएंगे तो वो वैल्यू 2 बन जाएगी, राइट। तो सिमिलरली इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये स्टेयर की फॉर्म में बनता है इसका ग्राफ। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं, 0 से -1 के बीच में अगर मैं वैल्यू डालूंगी तो कौन सी, कहाँ पर वैल्यू आएगी मेरी, यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू स्टैग्नेंट रहेगी, ठीक है।
-1 से -2 के बीच में वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर वैल्यू स्टेगनेंट रहेगी। ठीक है, अगर मैं -1.5 लेती हूँ, -1.5 लूंगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा मेरा -1.5 का, f ऑफ -1.5, ये कितना बन जाएगा -1.5 इनसाइड द ब्रैकेट। सो -1.5 का नियरेस्ट सबसे छोटा क्या कहते हैं इंटीजर क्या निकल कर आएगा इसका, ऑब्वियसली -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, -2। दैट मीन्स -1 और -2 के बीच में जितने भी हमारे रियल नंबर्स आएंगे उनके लिए मेरी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -2 निकल कर आएगी। ठीक है, उनके लिए मेरी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -2 निकल कर आएगी। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस हिसाब से बनता है। नाउ इफ यू लुक एट द डोमेन, now it is a function from real numbers to real numbers, that means domain can be entire set of real numbers। ठीक है, रेंज क्या बन जाएगा मेरा, रेंज में मेरे कौन से नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, only integers, right? So range will be the set of integers, that is z। codomain obviously can be the set of real numbers, this can be codomain। also z जो होता है मेरा सबसेट होता है रियल नंबर्स का, so this codomain is again justified। Fine. So in this video we have basically covered the different functions, real valued functions or unke graphs। Fine. So just go through the video again and again, clear your concept, and in the next video we will move on to exercise 2.2। ठीक है, oh sorry, exercise 2.3 which is based on functions। Fine. So I request everyone to please clear your concept, go through the video again and again। आप ग्राफ देखिए कैसे बन रहे हैं, ग्राफ समझिए कैसे बन रहे हैं, डोमेन रेंज निकालना सीखिए इन्हीं फंक्शंस की, पहले 2.3 में हम और फंक्शंस की निकालना सीखेंगे। ठीक है, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग।